Good afternoon. Hello. Morning, sir. Good afternoon, sir. Good morning. Good morning. बेटा, Morning, sir. have you all written the definitions? मैंने आप लोगों को definition note करने को कहा था. Have you all written them? Yes, sir. You have said 2 definitions to write. Very good. You all have written the definitions. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. You will write down the conditions for congruency. Conditions. Next heading. Conditions for congruence of triangles. Conditions for congruence of triangles. First is triple S. In the bracket, you will write the full form. Side, side, side. This is the full form. Second one is SAS, write the full form. Third is ASA, write the full form. Fourth is AAS, again write the full form. And fifth one is RHS, again write the full form. Right angle, hypotenuse, side. Right angle, hypotenuse, side, known as RHS. लिखिए कॉपी से लिखिए. Write all the names of all the 5 conditions to prove congruency of triangles. अगर हम इतना कह देते हैं कि दो triangles की तीनों sides equal हैं, that means the triangles are congruent. We can say that the triangles are congruent. If we say that in two triangles, two sides and one angle is equal, the angle which is equal is between the two included sides, is included between the sides which are equal. Then also the triangles are congruent. Good morning, sir. Good morning. ASA, AAS, RHS, ये 5 क्राइटेरिया हैं आपके जिनका यूज करके आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं. Okay. I will be asking you some questions now based on this. I will make 2 triangles on the board and you have to tell me that you can use which property to show that the 2 triangles are congruent. Okay. Have you all written it? Yes, sir. Okay. So I will be asking you some questions based on this information. You don't have to draw anything or write anything in your notebook. Just answer my questions. Okay.
So I'm drawing a figure here. Can we say that the triangle ABC is congruent to triangle? क्या हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC ADC के congruent है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. If we can say that, by which condition we can say that they are congruent? Sir, can I tell? The triple S. The triple S. ट्रिपल एस कंडीशन का यूज करके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे देखिए कैसे। Here it is given that पहली साइड ये साइड है, देखिए है दो, एक एक साइड दोनों की इक्वल हो गई, फर्स्ट थिंग। दूसरी देखिए यहाँ पर BC इज इक्वल टू DC, BC और DC भी इक्वल दिए हुए, ये भी एक और साइड है, दो साइड्स हो गई। BC इज इक्वल टू DC, सॉरी, दो साइड हो गई। और थर्ड साइड कौन सी है? यहाँ पे कोई और साइड भी है, थर्ड साइड भी है क्या? अच्छा, मनीर आज वो मना रही है आज लोहड़ी, मनीर आज इसलिए एब्सेंट है, मटर मनीर। हाँ जी, बताइए व्हाट इज द थर्ड साइड? दो साइड्स हो गई। आप लोग कह रहे हैं ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सी है? कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? बताइए। नहीं पता? अरे यार अभी तो बोल रहे थे नैतिक, दो ही साइड्स तो हैं, थर्ड वाली कौन सी है? Sir, it is why AC is common in the figure. Yes, the side AC is common. AC is equal to AC. AC is a common side in both the triangles. AC जो है वो triangle ABC की भी side है, and AC is also a side of triangle ADC. दोनों triangles की side है AC, common side है भाई ये तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रीजन? It is a common side. That is why एक और साइड मिल गई हमें, तीनों साइड मिल गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3, साइड साइड साइड। तो ट्रिपल एस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रीजन? बाय ट्रिपल एस कंडीशन। कंडीशन का नाम जरूर लिखना है, कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है? ट्रिपल एस कंडीशन से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया है? जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो। एनी डाउट? क्लियर है या नहीं? No, sir. It is no use of sitting here in the class and not answering it all. कोई फायदा नहीं है आपके यहाँ बैठने का, मैं अटेंडेंस अगर आप लोग मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो। Sir, I am responding. नहीं बेटा, तुम तो कर रहे हो। नैतिक इज रिस्पॉन्डिंग। उजैर खान कहाँ पर हैं? Yes, sir. बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. और वीडियो ऑफ कर ली तुमने, अच्छे खासे वीडियो ऑन करके पढ़ाई करते थे, अब तुम वीडियो ऑफ कर लेते हो यार, ऐसा क्यों? Sir, please give the next question. यस, ये नोट नहीं करना है कॉपी में, पता लगा नोट करने बैठ गए। Yes, मैं sir. सिर्फ आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। You don't have to note down anything. Sir, I have a doubt in ratio and proportion. One question. क्या हुआ?
The ratio and proportion, I have doubt in one question. You can ask me later. Okay. Okay, sir. Sir, can I ask in evening on your personal book? You can call me and ask. Okay, Okay. sir. And on what time? You call me in the evening at 7:30. Okay, sir. Okay. So next, one more example. Let me give you another example here. Here it is given that AD is perpendicular to BC and the length of AB is equal to AC. Can we say that triangle ABD is congruent to triangle ACD? क्या हम triangle ABD और ACD को congruent Yes, sir. बोल सकते हैं? Yes, sir. बताइए, कैसे बोल सकते हैं? Sir, by RHS. By RHS. हाँ जी. Sir, by SSA, side angle. Side angle. अच्छा. और कोई बच्चा? No, sir, SAS, side angle side. Side angle side. अच्छा, side angle side. और कोई बच्चा कुछ और बता रहा है तो बताइए. हाँ जी, नैतिक बताइए कैसे साइड एंगल साइड कैसे लग रही है? बताओ बेटा नैतिक. क्या कौन कौन सी तीन चीजें मुझे यहाँ पर लिखनी चाहिए? पहली बात तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गई. नैतिक आगे बताइए. Yes, sir, AB is equal to AC. गिवन है. सेकंड चीज बताइए. And sir, sir, AD is common. एडी इज कॉमन. बहुत अच्छे. एडी इक्वल्स टू एडी. और बताइए. कॉमन हो गई. And sir, ये गिवन है. और थर्ड चीज बताइए. sir, BC is equal to DC. बीसी इज इक्वल टू डीसी. बीसी और No, डीसी sir. तो कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है. No, sir, no, sir. हाँ. आपने साइड एंगल साइड बताया तो एंगल कौन सा है? कौन सा एंगल है? Sir, D. Sir, D. एंगल डी. एंगल Yes, डी sir. कौन सा? Sir, the is AD. AD. एडी तो कोई एंगल नहीं है. एडी तो साइड है. एंगल एडीसी बोल सकते हैं आप. ये नेट. इस एंगल का नाम क्या है? एंगल एडीसी. क्या बुलाएंगे इसको? ADC. एडीसी. हाँ, ये एंगल 90 डिग्रीज का है 90 का. तो ये Yes, एंगल sir. किसके इक्वल है? Sir, ABD. Sir, गलत. ABD. गलत. Sir, ADB. एडीबी. यस. अगर ये एंगल 90 है तो एंगल एडीबी भी आपका कितना होगा? 90 तो होगा भाई. लीनियर पेयर हैं दोनों. Sir, angle side angle. नहीं यार, रुको तो भाई. Sir, by RHS. दोनों एंगल 90 के हैं. यस, करेक्ट. बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस. एडीसी. किसने बताया था? मयंक ने बताया. किसने बताया? Sir, मैंने. ध्रुव आप. भोजवानी. ध्रुव भोजवानी. देखिए, ध्रुव भोजवानी. Yes, sir. होल्ड करिए.
Okay, so angle ADC is equal to angle ADB. Each is of 90 degrees. Each angle 90 degree. दोनों 90 के, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे. तो बेटा दो साइड्स हो गई हमारी, एक एंगल हो गया. कौन सी दो साइड्स हुई हैं? AB is equal to AC, AD is common and one angle is of 90 degree. तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है साइड साइड एंगल. क्या ये एंगल दोनों साइड्स के बीच वाला है? AB और AD के बीच में एंगल है ये? नहीं है. तो इसको तो हम साइड साइड एंगल बुलाएंगे. क्या मुझे इसको साइड साइड एंगल बनाना चाहिए? नहीं. ये है आपका राइट एंगल. ये राइट एंगल है. ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है. तो यस, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS प्रॉपर्टी. ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by RHS property. Is it clear or not? Right angle, hypotenuse, Yes, sir. side. तो ये मैंने आपको Yes, एक sir, क्वेश्चन clear. दिया जिसमें RHS प्रॉपर्टी का यूज हुआ. चलिए, Sir, one more example. अभी हम बुक में से करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे. तो ये Okay, this sir. was just a exercise to make your concepts basics clear in the chapter. अभी बुक में से भी काफी कुछ सीखना है हमको. Okay, so can you tell me the page number? Okay, got it. चलिए देखिए, अभी one more thing is there that using the, अच्छा एक और चीज, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. सपोज ट्रायंगल ABC Sir, and we are doing exercise. हाँ जी, Sir, we are doing exercise. नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. one more example I am giving you. So here it is given that side AB is equal to side DX, angle B is equal to angle X, and BC is equal to XP. Can we say that the two triangles are congruent? जल्दी बताइए. No, sir. नहीं है congruent. अच्छा, यार ये तो बड़ी खतरनाक बात बोल दी तुमने. और बच्चे, are the two triangles congruent? Yes, Sir, sir. it's congruent. They are congruent. By which property? Yes, sir, they they are are congruent? congruent. Sir, can I tell? हाँ यस, बताइए नैतिक. Sir, why SAS property? Yes, very good. They are congruent by SAS property. SAS कैसे लग रही है? Side AB is equal to side DX, side BC is equal to side XP, and angle B is equal to angle X. Angle B और angle X दोनों कहाँ हैं? दोनों sides के बीच वाला एंगल है. देख लीजिए, sides के बीच वाला एंगल. जो दो sides आपकी equal है उनके बीच वाला एंगल है. ठीक है. So that means included angle. Side angle side, side angle side, side angle side. समझ में आ गई बात? Side angle side property से the two triangles are congruent. अब congruency जब हम लिखते हैं तो इसका लिखने का तरीका भी है. Triangle ABC is congruent to triangle PDX. अगर मैंने ऐसे लिखा, दोनों triangles congruent है, am I right or not? Triangle ABC is congruent to triangle. Yes, sir. लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है लिखने का. अगर मैंने ऐसे लिखा ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DXP, तो ये तरीका बिल्कुल सही है, ऊपर वाला तरीका बिल्कुल गलत है. बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? Sir, because D is starting from the point where the triangle is starting. मैं आपको बताता हूँ क्या चीज गलत है क्या सही है. यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या गलत है देखिए. आपको जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो पार्ट इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो आपको सेम ऑर्डर में लिखने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
एंगल बी के इक्वल वहां पर कौन सा एंगल है बताइए जरा, उस वाले ट्राइंगल में। सर एक्स। एक्स। तो यहाँ पर मैंने जो एंगल बी लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे लिखा है, सेकंड पोजीशन पे लिखा है। यस तो सर। वहां पर मैंने एक्स को कहाँ लिखा है, थर्ड पोजीशन पे। सर इन द थर्ड इसलिए पोजीशन। ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर देखिए एंगल बी मैंने कहाँ लिखा है, सेकंड पोजीशन पे। एक्स को कहाँ लिखा है, सेकंड पोजीशन पे। तो अभी सेकंड तक तो सही पोजीशन। है। खाली इतना चेक नहीं करना, और भी कुछ चेक करना है, साइड्स को भी चेक करना है। बी और एक्स की पोजीशन तो बिल्कुल ठीक है। आइए साइड्स की पोजीशन को चेक करें। ए बी के इक्वल साइड कौन सी है, वहां पर देखिए ए बी के इक्वल कौन सी है, डी एक्स। dx। dx इज इक्वल टू ए बी है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के दो लेटर ए बी बना रहे हैं, ए बी साइड बना रही है, स्टार्टिंग टू लेटर्स साइड ए बी। यस सर। वहां पर स्टार्टिंग के दो लेटर क्या बना रहे हैं, डी dx। एक्स। तो ए बी और dx इक्वल है, यानी कि ये भी सही ऑर्डर लिखा है मैंने, साइड्स का ऑर्डर भी ठीक है। और जरा देखिए यहाँ पर BC साइड, BC के इक्वल क्या है वहां पर, XP। BC के इक्वल वाली साइड कौन सी है, XP। तो यहाँ पर BC देखिए लास्ट के टू लेटर्स क्या बना रहे हैं, BC। वहां पर लास्ट टू लेटर्स को देखिए क्या बना रहे हैं, XP। तो BC is equal to XP, ये भी बिल्कुल ठीक है। That is why this method of writing is absolutely correct and this method of writing is absolutely wrong। समझ में आ गया आपको, इसको कहते हैं राइटिंग द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर। आपको आ गई बात समझ में या नहीं आई। सर आ गई। चलिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या आप लिख सकते हैं कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है सही तरीके से। सर आई विल टेल। वेरी गुड, आई लाइक योर एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, मुझे तुम्हारा अच्छा लगा देख करके। चलिए मैं एक ये ट्राइंगल बना रहा हूँ एंड एक मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। चलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हिच ट्राइंगल, क्योंकि एक और चीज बता दूं मैं, साइड AC इज इक्वल टू साइड DB। What should I write? Triangle ABC is congruent to triangle. सर डी पी जेड। हाँ जी, सर DPZ। DPZ। ये गलत है बेटा, आप गलत बता रहे हैं, सही से देखिए जरा ध्यान से। एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल ए इक्वल टू, जेड पी। अरे एंगल ए भाई, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू, P। एंगल ए इज सर इक्वल टू पी। एंगल पी। यहाँ पर एंगल ए मैंने कहा लिखा है, ए फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, तो वहां पे क्या आएगा, पी आएगा, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। पहली बात। एंगल सी किसके इक्वल है, वहां पर एंगल डी के इक्वल। ई। यहाँ पर सी कहाँ लिखा है मैंने, थर्ड पोजीशन पे, तो वहां से डी में कहाँ लिखूंगा, थर्ड पोजीशन पे लिखूंगा। थर्ड पोजीशन। एक लेटर बचा, वो क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली जेड आ जाएगा। सर जेड। अब चेक करिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए और पी इक्वल है, करेक्ट। सी इज इक्वल टू डी, थर्ड पोजीशन सी, थर्ड पोजीशन डी, बिल्कुल ठीक है। साइड AC, साइड AC is equal to side PD, AC, AC, फर्स्ट थर्ड, AC फर्स्ट थर्ड, PD के इक्वल है, फर्स्ट थर्ड PD,
फर्स्ट थर्ड। समझ में आ गई बात या नहीं आई? बाय विच Yes, sir. प्रॉपर्टी? बाय Yes, angle, sir. side angle. The two triangles are congruent by ASA. Have you all understood? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। I will tell you what to write, what to do in the first question. Only the first part I will do. It is to be done in the book. Question number 1. Question 1. First part, exercise 16. It is to be done in the book only. यहाँ पर लिखा हुआ है triangle ABC is congruent to triangle EFD. EFD. तो मुझे यहाँ पर क्या बताना है? मुझे ये बताना है कौन सा पार्ट किसके corresponding है दोनों ट्राइंगल्स में। अब मैं उल्टा काम भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे फिगर तो दिया नहीं है, figure is not given, so I have to just see the way they have written the congruency between the two triangles, and I have to find that which parts of the two triangles are congruent, corresponding, sorry, which parts of the two triangles are corresponding to each other. तो एंगल ए अगर मैं कहूँ यहाँ से, तो उधर से कौन से एंगल के इक्वल होगा? देख के बताइए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। खाली मैं इसको देख के बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ? देखिए कितना फायदा है इसका, फिगर के बिना बता सकते हैं इसको देख करके। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू Angle एंगल एफ, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल। Angle और बताइए साइड्स का देखिए, साइड ए बी, एंगल मत लगा देना आप, ए बी इज इक्वल टू विच साइड? Sir, EF. EF. वेरी गुड। अगला देखिए, साइड ए सी इज इक्वल टू विच साइड? ED. Absolutely correct. AC, first third, first third, first third, AC, first third, ED. आ गई बात समझ में? And the side BC Yes, sir. is equal to FD. BC is equal to FD. FD. तो यही Sir, काम we have to आपको, हाँ जी, सर हमें ये लिखना है। हाँ ये आपको बुक में लिखना है। Write the answer of the first one in the book. ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं। जल्दी बुक में आंसर लिखिए सारे पार्ट्स के, क्विकली ऑल ऑफ यू। सर देयर इज नो स्पेस। बेटा हो जाएगा, जगह बनाओ थोड़ी सी। You can write them, छोटा छोटा लिखो। Sir, हाँ जी, sir, at YouTube, sir, you having old video of percentage chapter, हाँ बिल्कुल होगा। sir, because sir, I having doubts in percentage chapter, sir. I want to see that videos. बेटा you can search them on my channel. Okay, sir. Okay. Thanks, sir. If you have written the dates, मैंने कौन सी डेट में कौन से चैप्टर्स कराए हैं, तो आपको इजीली वीडियो मिल जाएगा। Any one of you, are you writing the dates कि मैंने कौन सी डेट में कौन सा चैप्टर कराया? Yes, sir. हाँ, तो प्लीज टेल की परसेंटेज मैंने कौन सी डेट में कराया है, बता दो फाजिल को। फाजिल तो कौन था? हाँ फाजिल। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, Sir, in first part only these were, second and third and fourth only these two we have to write. हाँ यही करना है, सेम ऐसे ही करना है in the second, third and fourth part also. And sir, what is the name of your YouTube channel? With which name? This is the name of YouTube channel. Okay. दुनिया का सबसे अनपॉपुलर चैनल है ये YouTube का। Sir, we have done percentage on 5 December.
ओके फाजिल 5th ऑफ दिसंबर के आसपास करा है परसेंटेज, देख लेना ध्यान से, फिर ढूंढ लेना। ओके 5th ऑफ दिसंबर डेट डालता हूं मैं, जब वीडियोस आए अपलोड द वीडियोस, आई राइट डाउन द डेट्स in the name of the video only. So lot of videos are there. Thousands में पड़े हुए हैं videos. Hundreds में पड़े हुए हैं videos. बहुत सारे videos हैं. कम से कम कुछ नहीं तो I think there should be at least 400 videos तो होने ही चाहिए. Zoom की क्लासेस कितने दिन से चल रही है हमारी? सेकेंड टर्म की स्टार्टिंग से चल रही है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कम से कम आपके 70 डेज तो कहीं नहीं गए. 70 में तो 60 तो हमारे नहीं, और हर दिन के 6 पीरियड, तो एटलीस्ट 300-400 वीडियोस तो होंगे ही होंगे. सर मिल गई वीडियो। वेरी गुड. यस सर। शेयर कर दो फाजिल के साथ. Sir, I am also searching. Sir, I have done the exercise. First question. वेरी गुड. क्वेश्चन 2 में आपको बताना है कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच मेथड. शुरू करिए क्वेश्चन 2. फर्स्ट पार्ट देखिए. Tell me that the given triangles are congruent by which method, which property, which condition, which criteria, which theorem. Sir, by SAS property. Very good. The two triangles which are given in the first part of question 2, दो triangles आपको दिए हुए हैं, कौन सी condition से congruent है? By SAS property, the two triangles are congruent. नैतिक, tell me the names of the triangles. क्या नाम बताएंगे? Triangle ACB is congruent to triangle. Sir, ACB is congruent to EDF. नहीं, फिर से देखो ध्यान से, सर DEF। कॉपी में लिख करके करिए. ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बताइए ध्यान से देख के, कॉपी में लिख के देखिए. ACB इज कॉन्ग्रुएंट. यस, सर DEF. DEF। हाँ DEF क्यों होगा? देखिए एंगल C के इक्वल वाला एंगल कौन सा है? एंगल E. तो C और E देखिए, दोनों को मैंने सेकंड पोजीशन पे लिखा है. और साइड AC के इक्वल कौन सी है? DE. AC साइड के इक्वल कौन सी साइड है? DE. तो DE। ACB is congruent to triangle DEF. ऐसे करके लिखेंगे. प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे बाय SAS. Triangle ACB is congruent to triangle DEF by SAS. Right?